We have the points, yesterday's points. We have some, the first, ax square bx plus c. What is the graph of this point, this quadratic expression? The graph depends on what? The 2 points. What are the 2 points first? What is the sign of positive? A positive, A negative. Now, when A is positive, the graph is upward graph. A is negative, the graph is downward graph. Now, at the same time, when A is positive, upward graph has a 3 conditions. What are the 3 conditions? Downward has also same 3 condition. Downward has also same 3 conditions. What are the 3 conditions here? These 3 conditions depend on what? B square minus 4ac. B square minus 4ac positive, negative, and 0. B square minus 4ac positive, negative, and 0. If positive case is there, negative case is there, and 0 case is there. Upward में 0 का मतलब touching to the axis, touches, downward also touches, downward also touches the x-axis. Negative means will not touch and not neither touch nor intersect. And positive means intersects. Means keep in mind, positive means intersects in 2 point, negative means neither intersect nor touch, and 0 means touches. And A positive means upward, A negative means downward. And B square minus 4ac is also called as a discriminant or delta. This point was over in our previous lecture. Now, in the today's lecture, in the today's talk, our topic is the same topic we are going to continue. We will see again some points related with this. Now, at the same time, I had given you the some idea about the maximum value and minimum value. So let us consider the maximum value and minimum value. What will be the maximum value and at what point the y is maximum, this quantity is maximum. Sometimes if you have this type of expression and it is asked what is its maximum value or minimum value, whichever exist. If you have some expression in terms of this, any expression is in these terms, some square term, degree 1 term, and constant term. Yeah, square term only. Square term must be there. Means the expression is in terms of quadratic expression. Any expression in science, maybe if it is a quadratic expression, we are thinking only up to the quadratic expression. Our part is our study up to quadratic equation. If any expression is in terms of a quadratic expression, then it will have some maximum value, it will have some minimum value, it will have some maximum value, and it will have some minimum value. If it has a maximum value, no question of minimum value, no question of maximum. In some cases both values exist, but our topic is a quadratic expression. If it is a quadratic expression, then what is the maximum value and for what value of x? X is a variable. X is a variable. Now see here, there are two variables. X is called independent variable. An independent variable. X is independent. It doesn't depend on anything. And the value obtained from the variable x is we denote by y in so many cases. The value obtained from variable x is denoted by y. So y is dependent on x. So y is called a dependent variable. Y is called dependent variable. When we put the value of one variable and we obtain the value of another variable, one variable changes, the another must be changed.
And if the change is like this quadratic equations, then we say that this is a quadratic expression and that variable y follows the quadratic expression. Then it may have y has a maximum or minimum value. Means this complete expression has a maximum or minimum value for each value of x, whatever may be the possible value of x. x आर इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी x पुट कर सकते हो, वो पुट करने के बाद मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, वो x के कौन से वैल्यू को आएगा, सीयर क्या आएगा वैल्यू, और व्हाट वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द मैक्सिमम और minimum value. So let us come towards our point, very important point, maximum and minimum value of the expression. What is the maximum and minimum value of expression is our point. Now we have the first graph here, a positive upward graph, and delta is greater than 0. Consider this as a first graph. Now let us draw one of the example. See here, it will intersect at 2 points. We had discussed is last lecture, last session, it was discussed. Now, as far as we consider this graph, see here, this is a y-axis, this is x-axis, x-axis, this is a y-axis, it is a curve. This is a curve of ax square plus bx plus c. Now this curve is obtained by putting the value of x. This curve is obtained by putting the value of x. जब हम x के वैल्यू पुट करते हो तो हमें y की वैल्यू मिलती है. इसे x, y जो हमने शुरुआत की थी, कैसे ग्राफ किया जाता है, एक x का वैल्यू होता है, उसके लिए y का वैल्यू आता है. x जो है हम पुट करते हैं एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर, और y जो है वो वैल्यू आ जाती है इसमें पुट करने के बाद. फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ये जो क्वाड्रेटिक है. फिर ये एक्स वाई जब प्लॉट किया तो ये ग्राफ मिलता है इस तरह का. अब इस ग्राफ में हम जाएंगे, हमें मालूम है ये अपवर्ड है, ये दो जगह इंटरसेक्ट करता है, डेल्टा अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव का केस हमने लिया समझ, उसका एग्जांपल भी ले लेंगे हम. बट पहले थ्योरेटिकली क्या है, तो ये जो यहाँ है ना ग्राफ, ये जो नीचे आया है, दिस पोर्शन इज, ये जो है सबसे नीचे पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ये यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -b/2a. अभी इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और उसकी जो y की वैल्यू है उसे कहते हैं मिनिमम वैल्यू. जिस x के लिए ये सबसे नीचे आता है, उस x को कहते हैं, उस एट दैट पॉइंट x इट इज मिनिमम. और उसका जो y का वैल्यू है x पुट करके, यानी पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, y मतलब इसका वैल्यू, x पुट करके जो आता है उसे हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू. सो लेट अस फाइंड द मिनिमम वैल्यू. सीधा साधा सवाल है, हमें x के जगह -b/2a पुट करना है. तो -b/2a का स्क्वायर क्या हुआ, b²/4a², राइट टू अंडरस्टैंड, प्लस b इंटू -b/2a तो होता है माइनस. लेट अस कंसीडर दिस इन डिफरेंट वे. फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर से इधर आएंगे. लेट अस कंसीडर दिस एज अ कैलकुलेशन. अगर हम इसे कैलकुलेशन की तौर लेके जाए, कि हमने क्या बताया कि एट x इक्वल्स टू -b/2a, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इज, मैं आपको बताता हूँ पहले फिर से, मैक्सिमम या मिनिमम होता है. ये चीज याद रखो. अभी ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है. तो y की वैल्यू कितनी आएगी, a इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x माइनस b/2a, व्हाट इज इट्स स्क्वायर, b²/4a. व्हाट इज वैल्यू ऑफ bx, माइनस b, और x की जगह -b/2a तो होगा -b²/2. द कांस्टेंट विल बी देयर. अब ये जो वैल्यू है, एक ए यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा b²/4a.
माइनस, देखिए बी स्क्वायर अपॉन 4a² और ये चला जाता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये कितना होगा, ये 4 है तो इसको 2a बनाओ, 2a से 4a बनाओ, या 4a से 2a बनाओ, कोई भी कुछ भी एक चेंज करो। 2a का 4a बनेगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2b² अपॉन 4a। सो दिस विल बिकम, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो b² माइनस 2b² अपॉन 4a, दोनों का डिनोमिनेटर 4a बना, प्लस कांस्टेंट विच विल बी, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको सब एक ही इसमें आना चाहिए, विच विल बी व्हाट, minus b square upon 4a plus c. Yes, it will be minus b square upon 4a plus c. इसको फिर से कैलकुलेट करें, इसको फिर से कैलकुलेट, ये माइनस 2b² माइनस b² 4a और a प्लस सी, तो इसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 4a क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा और इधर से शुरुआत होती है माइनस b² प्लस 4ac अपॉन 4। अब मुझे बताइए, इसमें से माइनस साइन कॉमन नहीं आएगा, माइनस साइन कॉमन, b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, माइनस b इंटू ब्रैकेट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, तो माइनस, अब ये कैलकुलेशन की ओर मत जाइए, अब डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, एट x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a माइनस ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a, 2a नहीं है 4a, गलती हुई थी मिस्टेक। तो क्या है हमारी वैल्यू, अवर वैल्यू वी ऑब्टेन, आपको जरूरत नहीं, वो आप फिर से बाद में कभी जब आपको कैपेसिटी आए तो आप कैलकुलेट कर सकते, तो हमारी y की वैल्यू जो है x के लिए तो है माइनस ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a, and this is called the maximum value, can read in any book. If you are interested in the mathematics based exam, higher exam, so you will have this formula. This is called the maximum or minimum value of the quadratic equation. It depends on this situation. अगर वो अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू, अगर वो डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू। अपवर्ड के लिए ये मिनिमम होगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, क्या है वो, माइनस ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a, हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ b² माइनस 4ac के लिए एक हमारे पास एक नोटेशन है, दैट नोटेशन इज डेल्टा, delta upon 4a, you know. So minus delta upon 4a is always the maximum value या minimum जो है वो, डाउनवर्ड में मैक्सिमम होगी और अपवर्ड में क्या होगी, मिनिमम होगी। तो चलो हम देखेंगे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के और व्हाट विल बी द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री केसेस इन अपवर्ड एंड इन डाउनवर्ड। तो हम फिर से इसको जाएंगे, फॉर्मूला तो मिल गया, फॉर्मूला से कुछ नहीं होता, वो कहाँ से आया ये भी हमें मालूम चाहिए कि यस ये मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। ये हमारा ग्राफ है, अब बोलेंगे वही वही बार चार चार बार, अरे और अंदर जाना है, उसको अंदर के जो है कैन यू पीवाई एग्जाम, किशोर वैज्ञानिक एग्जाम होती है। सो दिस इज अ फाउंडेशन फॉर ऑल एग्जाम, quadratic expression, a graph and graphical representation each every exam। तो हमारे पास एक ऐसा पैराबोलिक कर्व है, ये है हमारा पैराबोलिक कर्व जो हमने ड्रॉ किया था शुरू में, अब फिर से हम जाएंगे, ये हमारा पैराबोलिक कर्व है, दीज आर द एक्सिस, किसी भी तरह का हो सकता है, देखिए तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है, तो कौन से पॉइंट के लिए, x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a और y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a,
ये वैल्यू होती, इस वैल्यू को हम मिनिमम या मैक्सिमम, ये मिनिमम है ये वैल्यू, इसको नहीं, इसके लिए ये एक्स होना चाहिए, तब जो वैल्यू आता है ये एक्स होना चाहिए, तब जो वैल्यू आता है उसे हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू। ओके, जब ग्राफ इस तरह का होगा निगेटिव, देखो, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, इसमें डेल्टा जो है वो निगेटिव है, इसमें डेल्टा जो है वो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो है अपनी वो मिनिमम होगी, और वो कौन से पॉइंट पे होगी, x इज माइनस बी अपॉन टू ए, एक्स की ये वैल्यू होगी, उसमें एक्स की वैल्यू के लिए, और वैल्यू वही कौन सी, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, फॉर्मूला वही, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू। अब हम जाएंगे जो टच करता है उसके लिए, सभी के लिए फॉर्मूला सेम, जब टच करेगा एक ही जगह, हम तीनों ग्राफ ड्रॉ करें, समझे किसी जगह ऐसा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका ग्राफ टच, अब टच कौन से केस में करता है, टच करने का केस क्या होता है, जब डेल्टा का वैल्यू जीरो होता है, डेल्टा का वैल्यू जीरो, तो ये पॉइंट क्या रहता है एक्स, ये जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम ये है ना, तो माइनस बी अपॉन टू ए इज एक्स, और उसका वाई क्या रहता है, यही वाई, दोनों में जो है वो, बट ये वाई लकीली कितना आता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, इस ये वैल्यू आप बता सकते हो जब टच करेगा डायरेक्ट, जीरो, यस वेरी गुड कार्तिक, यस अक्षय, पंकज, यस यस यस, ये जीरो आता है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए से जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, सो ये वैल्यू जीरो आता है कि वाई की वैल्यू है जीरो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो। चलो हम जाएंगे अभी ये निगेटिव के केस के लिए, व्हाट विल बी द निगेटिव केस में मैक्सिमम आएगा, ये जैसे मिनिमम है, नीचे आए तो मिनिमम, ऊपर गए तो मैक्सिमम। दिस इज योर y axis, this is your x axis, now x axis and y axis, और जब ये नेगेटिव होगा, when ये is negative then you will have the different cases, ये नेगेटिव में डाउनवर्ड पैराबोला रहता है, और डाउनवर्ड पैराबोला के तीन केसेस क्वाड्रेटिक के, ये पहला केस हमारा फैमिलियर केस इंटरसेक्शन का, हमने कल हमने एक प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था, जीरो पहला लिया था, बट आज हम ये ऐसा लिया, फिर दूसरा है ये नेगेटिव का, और तीसरा है हमारा ये टच करने वाला, टच, तीनों में हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। देखिए ये नीचे जा रहा है, ये नीचे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस देखना है, ये नीचे कैसे जाता है, क्या होता है नीचे जाना, मतलब क्या, तो ये हमारे टॉप पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वो कौन से पॉइंट पे, माइनस बी अपॉन टू, इधर डेल्टा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव, ये निगेटिव है, और ये जो डेल्टा है ये पॉजिटिव डेल्टा, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर है, ये है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे, तो वो तो हम बताएंगे नहीं आपको, इसके ऊपर भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। सी है अगेन, जब आप इधर आएंगे तो ये आएगा आपका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये नीचे कम हो रहे हैं ना, ये दोनों साइड में कम हो रहे हैं, तो ये टॉप पे, तो ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम जो है कौन से पॉइंट में, माइनस बी अपॉन टू, तो ये इधर डेल्टा क्या रहता है, जीरो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यस, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मंदार, जीरो, ये जीरो रहेगी। ओके, अब हमारा इधर जो है वो भी वैसे एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू है, और वाई की वैल्यू वही फॉर्मूला, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर है, कीप इन माइंड फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, अगर हम फॉर्मूला कंफ्यूज हुए तो इतना याद रखो, माइनस बी अपॉन टू, ये भी कंफ्यूज हो गए तो याद रखो, इक्वल के लिए इक्वल रूट्स का वैल्यू क्या होता है, इतना तो याद रहेगा ना, इक्वल रूट का वैल्यू एक्स होता है, वही पुट करके आपको वाई मिलता है, सीधा सादा सा, इक्वल रूट का वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ये होता कि नहीं, तो वही वैल्यू आपको, वही एक्स हमें वाई की यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने में मदद करता है,
this x will help us finding the maximum value. नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा आगे जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत में कंप्लीट कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट कंप्लीट चाहिए। अब मेरा ये सवाल है कि यस, ये जो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव जो है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बाद में डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो। और एक चीज होती है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स के बारे में फिर से चर्चा करेंगे और इसी रूट्स का एप्लीकेशन नेक्स्ट सेशन में होगा कि जब हमारा डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है तो मतलब नो रूट्स, ना इक्वल रूट्स, है ना, इक्वल रूट्स, और वो रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन, वो जो रूट्स रहते एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन टू। तो मेरा ये कहना है हमारा एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जी, ये है। तो x अगर माइनस बी अपॉन टू ए इसमें पुट किया तो y का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा इस केस के लिए, भूल गए, x का वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा वैल्यू आता है, माइनस डेल्टा अपॉन फोर आता ना, और डेल्टा इस केस में क्या है, डेल्टा इस केस में, डेल्टा इज व्हाट इन दिस केस, जीरो है ना, डेल्टा इस केस में जीरो है ये, तो माइनस जीरो अपॉन एनीथिंग विल बी जीरो, मतलब ये वैल्यू जीरो आती है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, फिर से जाएंगे, बहुत सही। मुझे आपको ये बताना है कि जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स एट द रूट्स, एट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो रूट्स है ना दो रहेंगे इक्वल या नहीं रहेंगे, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जो रूट्स के वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट्स के वैल्यू है उसी वैल्यू को, मतलब ये एक्सप्रेशन का जो पार्ट है उसको निकाल लीजिए बाहर और उसको इक्वेशन में बनाइए और जीरो कीजिए, उसके जो रूट्स है, अभी वो रूट्स तो हमें मालूम है कैसे फाइंड करना है, तीन कंडीशन होते हैं डेल्टा के ऊपर, वो तीनों कंडीशन में एक में इक्वल रूट्स रहते हैं, दूसरे में डिस्टिंक्ट रूट रहते हैं, तीसरे में रूट्स ही नहीं रहते। अगर रूट्स है इक्वल तो इक्वल जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, डेल्टा जीरो की कंडीशन बता रहा हूँ, इक्वल जगह इंटरसेक्ट करना मतलब एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करना। देखिए, at the roots of quadratic equation the graph of y intersect x axis, y एक्सिस का ग्राफ जो है यानी ये एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये रूट के वैल्यू के पॉइंट में, रूट्स की वैल्यू मतलब वो एक्स की वैल्यू है, तो अगर रूट्स के दो वैल्यू है तो एक्स के दो वैल्यू, रूट्स की एक ही इक्वल वैल्यू है तो एक वैल्यू, अगर रूट्स नहीं है तो एक्स की वैल्यू नहीं है, अगर दो वैल्यू इक्वल है तो मतलब एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा और उसे हम कहते हैं टच करना, डेल्टा वैल्यू जीरो,
रूट्स के दो वैल्यू है, मतलब दो जगह एक्स एक्सिस को टच इंटरसेक्ट करेगा, और रूट्स की वैल्यू नहीं है तो एक्स एक्सिस को वो टच नहीं करता है, इंटरसेक्ट। तो चलो ये कैसे, ये हमने जो बताया उसको सिर्फ हम एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक ग्राफ से बताइए कितने रूट्स, हाउ मेनी रूट्स दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इक्वेशन बनाने के बाद इसके कितने रूट्स है, कितनी जगह वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह। अगर ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इक्वेशन की दो रूट्स है ना। इस ये रूट अल्फा या बीटा होगा, जो लेस रूट होगा इधर होगा, ये जो एक्स की वैल्यू है ना, ये एक्स की वैल्यू, और ये जो एक्स की वैल्यू है, ये समझो हमने बीटा ली, बीटा हमने बताया था कि लेस है, आपने भी बताया था बीटा लेस होता है अल्फा से। ये बीटा है और ये अल्फा है, एक्स की वैल्यू, ये रूट्स होते हैं। ये बीटा होगा या अल्फा होगा, एक्स का जो बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, ये जो दो रूट्स है, ये दो रूट्स, ये एक्स के ऊपर, एक्सिस के ऊपर रखो वैल्यू, है ना। फिर हम जाएंगे ये केस की ओर, थोड़ा नीचे आए तो नहीं चलेगा, हर चीज की पढ़ाई होगी, हर चीज। तो ये जो है, यह अल्फा बीटा इक्वल है, अल्फा बीटा इक्वल है, और उनकी वैल्यू जो है इस केस में वो है -b/2, इक्वल रूट्स, वन रूट रहता है टच करने के केस में, अल्फा बीटा इक्वल। डेल्टा जीरो है, यस, डेल्टा की वैल्यू जीरो होती है, इधर डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब हम जाएंगे इधर, देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ने के लायक है। ये देखो इधर, ये रूट डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है, मतलब नो रूट्स, नो रूट्स मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के वैल्यू नहीं, मतलब किसी भी एक्स के वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, ये मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी का मतलब, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी का मतलब, इमेजिनरी रूट मतलब ये जो है ये एक्सप्रेशन नीचे इधर y जीरो नहीं होगा। जब y जीरो नहीं होगा मतलब y कब जीरो होता है, x एक्सिस पे, मतलब ये ग्राफ y x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये मीनिंग है उसका, है ना। y किसको किसको डिनोट किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, कंप्लीट को y डिनोट किया। जब डेल्टा निगेटिव होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के रूट्स नहीं होंगे, मतलब क्या, अगर रूट्स नहीं होंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो नहीं होगा, उल्टा उसका। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जीरो है, अगर डेल्टा निगेटिव है तो रूट्स नहीं होते, उल्टा करो, रूट्स नॉट एग्जिस्ट, उसको उल्टा पढ़ना। अगर डेल्टा नेगेटिव है तो रूट एग्जिस्ट नहीं होते, रूट एग्जिस्ट नहीं होते मतलब ये वैल्यू जीरो नहीं होगी। देखो, अगर ये वैल्यू जीरो नहीं होगी मतलब ये वैल्यू किसकी है, y की, तो y जीरो नहीं होगा। अगर y जीरो नहीं होगा, और y कहाँ जीरो होता है, x एक्सिस के ऊपर, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये इतना बड़ा है इसका एक्सप्लेनेशन। फिर हमारा क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा में क्या होता है, अल्फा के लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये बीटा है, बीटा के लेफ्ट साइड में क्या होता है, अल्फा के राइट साइड में क्या होता है।
अल्फा बीटा के बीच में क्या होता है, इधर भी अल्फा बीटा इक्वल है तो दोनों के राइट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, और इसके लिए भी लेफ्ट और राइट साइड की कुछ बातें हैं. So this will be in the next session. Thank you very much for this session being with the graphical way or solving anything. You are watching this graphical way for this for value of a positive. Our next point will be when value a is negative, positive value, negative value, details.